Namaskar, I'm Ashok Vyas, and this program is Inside Tonight with Ashok Vyas. What we are discussing today is something that everyone in the world should pay attention to rather than discussing, talking, and going gaga about artificial intelligence. Yes, artificial intelligence, which is something that is not natural, but that is the kind of intelligence which has taken over the way people think and talk nowadays. But we are talking about artistic intelligence. And I heard from my Guru Ji that creativity is our divine heritage. How we should harness the creative potential within, and how are we doing in terms of the quotient of artistic intelligence. I am delighted to be welcoming three artists to our studio today, and you see them together. Namaste, हिमांशु जी, स्वागत है आपका. मोनिका जी, आपका स्वागत है. धन्यवाद. और Thank you. दृष्टि जी, आपका Thank भी you. स्वागत है. So Drishti and Monica both are singer also. Himanshu, musician, singer, actor, and whatnot. But we'll begin with you, Drishti, because Drishti word is so key to how we perceive the word. Talk to me about when you started understanding the meaning of your word. Was it difficult for you to process? Because there are many common, and don't mind Monica, so like there are Mona or things like those kind of names. So tell me, how was it, Drishti? First of all, thank you for this question. और दृष्टि का मीनिंग है विजन. So when I heard first time my name, I was thinking this is a very common name because in India बहुत सारे लोगों के दृष्टि और दृष्टि नाम होते हैं. तो then once I asked my family member, then why you gave me this name. तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे नाम का जैसा मतलब हो है विजन, और तुम्हारा गोल अच्छा हो, तो तुम्हारा विजन अच्छा हो, और तुम्हें जो करना है तुम्हारे लाइफ में वो लाइफ तुम अचीव कर लो. और ये अचीव करते हुए आप यहाँ तक आ गए, तो मैं आपको ये दो पंक्तियाँ याद करता हूँ आपके साथ, जिसमें आप बताइएगा हिमांशु जी ये किन की पंक्तियाँ हैं. कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो मुख देखा अपना मुझसे बुरा न कोई. ये किन की पंक्तियाँ मैं हिमांशु जी क्विज बाद में करूँगा. पर एक और बात है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहा जाता है. आपका नज़रिया क्या है, उससे पूरा का पूरा संसार बदल सकता. हाँ हिमांशु जी, किन की पंक्तियाँ दी? कबीरदास जी की. क्या बात है. कबीरदास जी की एक और कोई दुआ आपको याद आता है? बचपन से मुझे ध्यान है, मिडिल स्कूल में बहुत पढ़ते थे, हमको याद करनी थी हिंदी परीक्षा के लिए, मौखिक जो परीक्षा होती थी. तो जैसे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल खोए. तो पहले हम याद करते हैं, अब शायद हमें मीनिंग्स का जो है समझ. तो जो ये दो लाइनें बोलता है ना कोई आर्टिस्ट, लाइन है, तो उस बीच में वो याद कर लेता है कि ये ऐसी वाणी बोलिए. ये ट्रिक्स जो है वो क्रिएटिव हैं, और ये क्रिएटिविटी का एक एकदम ज्वलंत उदाहरण हिमांशु जी ने पेश किया. मोनिका जी, आपकी तरफ में बढ़ते हुए भजन से हम अगर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें, क्योंकि जो संगीत है वो हमें एकाग्रता को साधने में भी सहायक होता है. और आपने तो क्या संगीत विशारद तो दृष्टि जी ने किया है, पर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और आप मेहंदी लगाने में भी महारत रखती हैं. आपने बाकायदा गाना सीखा था या वैसे अभ्यास से आता गया? धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑल हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल अशोक जी, मेरी जो संगीत की जर्नी है दैट स्टार्टेड एट द एज ऑफ 28. सो आई वेंट टू कथा वाचन, मुरारी बापू जी की कथा देखने में गई थी. And I clearly, vividly remember that while hearing a singer singing on the stage, I was so mesmerized what kind of happiness they are getting by singing. So that kind of gave me that feeling, okay, now I have to learn it. At the age of 28, doesn't matter. So I went to my Guruji, Mukesh ji sir or Dheeraj ji sir at my hometown Nathadwara, and there I started learning it
semi classically. Like I learned semi classical singing with my mummy, like my mother. So we both went there and started learning. First ever song I remember I sang was Bhajan of Srinath ji. सुनाइए. जी. मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी. मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी. मारो मनडो छे गोकुल वन रावण. मारो मनडो छे गोकुल वन रावण. मारा तन नागणिया मां तुलसी नावन. मारा प्राण जीवन हो मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी. क्या बात है, Thank you बहुत so सुंदर much. गाया आपने. Thank you. तो मोनिका जी का गाना सुनते हुए मुझे ऐसा लगा, दृष्टि कई बार ऐसा होता है कोई गाते हैं तो हमें लगता है अभी ये चुप हो जाए तो अच्छा रहे, कुछ गाते तो हमें लगता है ये गाते रहें तो अच्छा रहे. वहाँ पे जो क्रिएटिविटी का उनके साथ संबंध स्थापित हो गया है, इस का असर दिखाई देता है. आप जब विधिवत सीखते हैं तो वो भी एक तपस्या होती है, साधना होती है. आपने तो संगीत विशारद किया, तो जब ऐसे सीख के विशारद बन के आए तो आपको लगा कि मेरे कुछ पंख आ गए हैं ऐसा? वैसे मेरे गुरुजी हैं समीर सर, वो कहते हैं कि संगीत एक ऐसी चीज़ है, संगीत एक दरिया है, हमें लाइफ टाइम उसको सीखना ही है. तो चाहे तुम विशारद हो जाओ, चाहे तुम मास्टर्स लेके अलंकार हो जाओ, कभी अपने पंख नहीं लगने चाहिए. तो मैं तो अभी सीख रही हूँ, तो मुझे चलो मैं आपके पास क्विकली वापस आना चाहता हूँ. हिमांशु जी, आप ये बताइए कि जब हम क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ आर्ट. एंड जैसे मैं गायक के लिए बात कर रहा था, कुछ लोग आते हैं तो हमें लगता है इसके पास बैठा जाए या इसकी बात सुने, या अगर वो नहीं भी बोल रहे हैं तो भी ऐसा लगता है कि कुछ एक फ्रेग्रेंस जैसी होती है कुछ लोगों की प्रेजेंस. इसका अपोजिट भी होता है कुछ लोगों में, वो कहते हैं चला जाए तो ठीक रहे. तो क्या चीज़ है जिसको आप क्रिएटिवली अगर उंगली रखना चाहें, जो आपके अंदर इस तरह का भाव बढ़ाती है कि हम इनका अधिक सानिध्य प्राप्त करें? मेरे कज़िन है जिन्होंने संस्कृत में पीएचडी किया JNU से, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि आपने क्या सीखा, तो उन्होंने एक शब्द दिया रस. तो जब हम ऐसे माहौल में जाते हैं, जैसे अभी मैं गरबे में जाते हैं, जैसे हम लोग, हालांकि मैं गुजराती नहीं हूँ, जैसे ही हम गरबे की धुन सुनते तो लगता है कि शुरू हो जाओ, हालांकि हमको आता नहीं फिर भी हम सीखते हैं. तो इसी तरह मैंने जब संगीत सीखना शुरू किया तो मेरे जो गुरुजी थे शंभू प्रसाद जी पवार, उन्होंने बताया कि पहले होते हैं शब्द, फिर आप उनको शब्दों को याद कीजिए, उसके बाद फिर आप उसको गाना सीखिए, फिर उसके भाव आपके अंदर आएंगे कि सुख है, दुख है, परेशानी है, उत्सव है, और उसके बाद आप उसको एक्सप्रेस करोगे. तो इट इज़ अ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम योर थॉट्स टू योर फिजिकल एक्सप्रेशन एंड देन कम्युनिकेशन, सो दैट दूसरे लोग उससे कनेक्ट हो पाएँ. तो ये जो टोटलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस है उसको अगर टच करना है तो क्रिएटिविटी के अलावा और कोई चारा नहीं. एंड इनबॉर्न हर एक मनुष्य क्रिएटिव होता ही होता है. पर जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई जा रहे हो, हम कहें कि नहीं रुक जाइए, तो अलग अलग लोग अलग अलग सेटिंग में अलग अलग तरह से कहेंगे. जैसे कॉलेज वॉलेज के दोस्त होते हैं, अरे कहाँ जा रहा है, बैठ जा कोई किसी का हाथ पकड़ के बिठा देगा. लेकिन अगर आर्टिस्टिक वे में एक गीत की तरफ बढ़ें या बल्कि गज़ल की तरफ बढ़ें, और दृष्टि वो बहुत अच्छा गाती हैं, आज जाने की जिद ना करो, हालांकि आप अगर वो सुनाएं. आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो,
की जिद ना करो। ऐसा लग रहा है कि आप इसका एक और अंतरा अगर याद हो तो सुनाई दें। ठीक है। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है, मर उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। भाई क्या वाह बात वाह है। वाह, क्या बात है, क्या बात। तो जब वो हिमांशु जब वो क्रेसेंडो पर जाता है, तुम ही सोचो जरा और जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तो उसकी जो अदायगी है उसमें सुनने वाला भी एक ऐसे मौन की तरफ चला जाता है जहाँ उस हुक को महसूस करने लग जाता है। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन को साथ लेते हुए आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और ये जो बातचीत हम कर रहे हैं आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस की, उसका एक उद्देश्य ये है कि हम आपके साथ ये याद करें कि जो भागदौड़ है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो जैसे आपने संस्कृत की वो सुभाषित सुनी होगी जिसमें जो कला विहीन मनुष्य है वो पूर्ण पशु के समान है। यानी मनुष्य तो जो हमारा है वो कला माध्यमों के द्वारा प्रकट होता है, पर प्रतिस्पर्धा और भौतिक सुख साधन जुटाने की दौड़ में कई बार हम कला माध्यमों को बहुत पीछे की तरफ रख देते हैं। तो ये कलाकार जो हमारे साथ आए हैं, इनके साथ चर्चा करते हुए आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस पर, हिमांशु जी एक गीत आपसे भी सुन लिया जाए और उसमें जो नीला गगन है, प्रकृति जो है वो भी हमें प्रेम की और रचनात्मकता की ओर ले जाती है। बिल्कुल अशोक जी, इतना अच्छा माहौल है और सब लोग इतने अच्छे अच्छे गीत सुनाए, तो मैं भी सुनाता हूँ। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले ITV गोल्ड का प्यार पले। क्या बात है। तो इन्होंने क्रिएटिविटी लाए और इस ITV गोल्ड को भी उस गाने के साथ जोड़ दिया। जुड़ने की जो दृष्टि है वो क्रिएटिव होते हैं। तो और आज़ादी कहते हैं कि जो आर्ट है वो यूनाइट करता है, आर्ट यूनाइट्स। तो ये जो एकत्व का भाव है उसकी आवश्यकता हमारे जीवन में बहुत अधिक है, क्योंकि जो बिखराव है वो वहाँ ले जाता है जहाँ बेचैनी होती है, तनाव होता है, और तनाव रहित जीवन हो ऐसा अभ्यास प्रयास हम सब मिलजुल कर करते ही हैं। दृष्टि, आप बताइए कि आपके जीवन में कोई ऐसा पल रहा हो जब या तो आप अपने गुरुजी को या किसी गायक को सुन रही हो और आपको लगा कि कितना सुंदर है, जो अंदर का सौंदर्य है वो भी किसी गायक को सुनते हुए हमारे लिए प्रकट हो जाता है। ऑफ कोर्स मेरे गुरुजी हैं जो समीर सर, उनको तो जब मैं सुनती हूँ तो लगता है कि सर क्लासिकली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक क्या है वो मैं उनसे सीखी हूँ।
जब वो कोई राग छेड़ देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सर को बहुत सारे गाना चाहिए। और अगर हम बात करें सेलिब्रिटी की, तो हरिहरन जी ऐसे हैं कि मैं उनको बार बार लगातार सुनना चाहूँगी। कौन सा गीत उनका बहुत पसंद है आपको? मैं उनको सुनती हूँ पर अभी मुझे कोई गज़ल उनका याद नहीं है। आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी की बात नहीं है, पर उनकी हाँ, उनकी गुजराती में एक गज़ल है, मोर पींचनी रजाई ओढ़ी तमे सुवो ने श्याम। वो अगर हम श्री आशीष देसाई की ओरिजिनल कंपोजिशन है और उन्होंने। अच्छा, हरिहरन जी गुजराती में भी गाते हैं, हमें तो पता भी नहीं है। जी, उनकी एक है। ये जो भाषाएं हैं अलग अलग, उनका भी अपना एक सौंदर्य होता है मोनिका जी। तो आपको कितनी भाषाएं आती हैं और आपको क्या लगता है कि भाषा का ज्ञान और एक मन के भीतर की रचनात्मकता का भी कोई संबंध होता है? अशोक जी, मुझे भाषाएं की बात करूँ तो मुझे 3 भाषाएं आती है। पहली जो मेरी मातृभाषा है मेवाड़ी, राजस्थान की बोली है वो, दूसरी हिंदी और तीसरी है इंग्लिश। भाषा जो एक्सप्रेस करने का माध्यम है, ये बात सही है, लेकिन अगर सपोज़ मैं यहाँ बैठी हूँ और जो मेरी मदर टंग है जो हिंदी है, उसमें मैं अपने आप को जितना अच्छे से अभिव्यक्त कर पाऊँगी उतना मुझे नहीं लगता है मैं इंग्लिश में कर पाऊँगी। तो भाषा के द्वारा हम रचनात्मकता और हमारे जो विचार है, हमारे जो भाव है, उनको अच्छे से प्रकट कर सकते हैं, मेरा मानना है। अच्छे से प्रकट करने के साथ साथ जो एक सहजता रहती है, और जैसे हम कहते हैं भाई अपने घर में बैठे हैं, आपके यहाँ आए तो ऐसा लगा कि हम अपने घर में ही हैं, उस तरह हम दूसरे मनुष्य को कॉम्प्लीमेंट दे रहे होते हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसा वातावरण दिया जहाँ उर्दू का शब्द लें तो इत्मीनान का जो अनुभव है, या तसल्ली से बैठ गए हैं, या तो ये जो अपनापन शब्द की तरफ जाऊं मैं आपके साथ हिमांशु जी, कई बार ऐसा लगता है कि जो क्रिएटिविटी है उसको लेकर भी कुछ लोग दूरियां बना लेते हैं, उनको लगता है मैं तो ये जो अहंकार का और क्रिएटिविटी का जो संबंध है, ऐसा हम सुनते हैं कि विद्या ददाति विनयम, पर कई बार ऐसा लगता है कि कलाकार जो है वो उस विनयशीलता को बनाए नहीं रख पाते हैं, ऐसा लगता है आपको? बहुत गहरी बात अशोक जी आपने निकाल दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कला ही नहीं, कोई भी चीज़ अगर मुझे लगेगा कि ये मेरी वस्तु है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी कला है, तो मैं का मतलब अहंकार। अगर आप मानेंगे कि ये सब समाज की वजह से, मेरे शिक्षकों की वजह से, गुरु की वजह से, या वातावरण की वजह से, परिवार की वजह से मुझे मिला है, और अगर उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, तो फिर शायद वो अहंकार का भाव उठने से पहले ही दब जाएगा। तो ये सभी पे लागू होता है, सिर्फ कलाकारों पे ही नहीं। लेकिन आपकी बात बहुत आवश्यक है, जैसे हम बड़े होते हैं, समझदार होते हैं और हम कुछ सीखते जाते हैं ज्ञान, तो उसके साथ साथ ये बहुत उसका बैलेंस, संतुलन बना रहे कि हम अहंकार में खो न जाएं उसमें। वो इट शुड नॉट गो इनटू आवर हेड, वी शुड बी लेवल ग्राउंडेड एंड दैट्स हाउ वी ग्रो एंड कीप ऑन प्रोग्रेसिंग। तो अहंकार का और प्यार का अपना स्थान है। दृष्टि, क्या आपको लगता है एडिशनल बातें हैं जो क्रिएटिवली अपने को बढ़ाने में मदद करती हैं? तो मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर दूं, एक अच्छा सिंगर अच्छा एक्टर हो ये ज़रूरी नहीं है, और फिर म्यूज़िक में भी कोई सितार अच्छे बजाते हों, वो तबला अच्छा बजाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो आप बताइए कि कैसे तो ये आइडेंटिफाई होता होगा एक आर्टिस्ट के द्वारा। जैसे आप सिंगिंग में आप संगीत विशारद हैं, तो आप बहुत सारे वाद्य तो नहीं बजाती होंगी, तो कैसे ये पता लगता है? और फिर जिसको ये पता लग गया उसको आसपास का वातावरण मदद करे, ये भी आवश्यक हो जाता है। इसके बारे में आप अपना अनुभव, और भी आपने देखा होगा कि कोई कहते हैं मैं तो ये करना चाहती थी पर मुझे उन्होंने यहाँ भेज दिया, ऐसा होता है? मैं मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, तो शुरू में जब मुझे आई स्टार्टेड माई सिंगिंग व्हेन आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड। जब पापा ने मुझे बोला कि तुम्हें म्यूज़िक करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी आवाज़ ठीक है, अच्छी है, तो मुझे शुरू में नहीं अच्छा लगता था, पर जैसे जैसे मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट बढ़ता गया और मेरे पेरेंट्स और आपने जैसे बोला कि
वातावरण का सपोर्ट बढ़ता गया, फिर आगे जाके यहाँ आके मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे म्यूज़िक में अच्छा लगता था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको म्यूज़िक में, जैसे हिमांशु जी ने कहा कि किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना है, तो सबसे पहले आपको ऐसा कोई व्यक्ति आपको चाहिए जो पहचाने कि ओके, आपके पास ये पोटेंशियल है। और सबसे अच्छी बात, आपके ऐसे गुरु चाहिए जो आपको सही राह और पथ दिखाए। तो सही पथ देखने के बाद में वो स्थितियाँ आती हैं जहाँ की विकास होता है। अब मोना या मोनिका, दोनों तरह से आपको संबोधित किया जाता है। मेहंदी जो है वो हमारा एक पारंपरिक कला माध्यम भी है, और उत्सवों के अवसर पर, विशेष करके शादी के अवसर पर भी आपको सबसे पहले कब लगा कि ये कितना इसमें रचनात्मकता है? किसी के हाथ पे मेहंदी लगे देखी होगी, फिर आपने खुद सीखा, उसके प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बता। तो अशोक जी, ये जो मेहंदी की जर्नी है, आई थिंक अगर जो इंडिया में राजस्थान, गुजरात और आसपास के जो भी राज्य हैं, वहाँ पर मेहंदी इज़ एवरीडे थिंग। लाइक हर छोटे छोटे फेस्टिवल्स पे हम मेहंदी लगाते हैं। और जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है मेरी मम्मा हमेशा हम लोगों को लेके बैठ जाती थी और मेहंदी लगाती थी। तो वो जो उस चीज़ को देख के वो जो खुशी जो पूरे घर में एक स्प्रेड हो जाती थी कि अब मेहंदी लग रही है, आज मेहंदी का एक फेस्टिवल होता था वो घर में। तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अंदर से खुशी से भर देता था। धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मेरी अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो आई स्टार्ट पुटिंग ऑन हैना। अगर मैं खुश हूँ तो भी मैं मेहंदी लगाऊंगी। आसपास के लोगों को पकड़ के मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देती थी। और स्पेशली अमेरिका में आने के बाद यहाँ आके थोड़ा सा एक कहा जाए एकाकीपन का एहसास हुआ कभी तो वापस से कोन पकड़ा और मेहंदी लगाना शुरू किया। उसके अलावा मेहंदी लगाने के साथ इतने लोगों से मैं एसोसिएट होने लगी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा यार ये चीज़ करके बड़ा मज़ा आ रहा है, खुशी मिल रही है। अगर आप मुझे पैसा भी नहीं दोगे या मुझे बोलोगे कि तुझे पूरे दिन बैठ के मेहंदी लगानी है, तो मैं शायद लगा दूंगी। तो वो कहीं ना कहीं वो एक पैशन जो क्रिएट हुआ ना, तो मुझे लगा हाँ यार ये मुझे इसको एज अ प्रोफेशन भी शुरू करना चाहिए। रिसेंटली मैंने इसी साल इंडिया के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, अमन गुप्ता, है ना, आर्टिस्ट है वो, उनसे मैंने प्रॉपरली ट्रेनिंग ली और अभी मैंने द मेहंदी मेला करके मेरा एक बिजनेस स्टार्ट किया, हैना का बिजनेस। बहुत बधाई हो आपको। Thank you. और जो बात आपने बताई है उसको लेते हुए हम जो प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगा। वो तो कई तो स्टेंसिल से जैसे आते हैं उससे बनाते हैं, कुछ अपने हाथ से बनाते हैं जी। आप हाथ से बनाती हैं जी। तो कैसे वो अंदर से आ जाता है क्या वो कि क्या डिज़ाइन बनना है? या तो अशोक जी, स्टेंसिल्स भी हैं आज के ज़माने में मार्केट में, लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि ये इन लोगों को कनेक्ट करने का एक ज़रिया है। अगर दो लोग आपस में बैठेंगे, मेहंदी लगाएंगे, कहीं ना कहीं वो अपने मन की बात शेयर करेंगे, उससे आप एक सोशली कनेक्टेड होते हो। आप तीनों का बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद है। आप सबका आभार है। आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस आपकी बढ़े, ऐसी मंगल कामना के साथ अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।